session, we have seen the operators as well as switch case, for loops, and while loop, do while loop, everything, right? So from operators, it is remaining only conditional operators and bitwise operator that we will see today. And then we will continue with the next module. So there are in operators, the conditional operator is known as ternary operator, where these two symbols we use, question mark and colon. Okay, how to use it? It is used for simple statement or simple condition. Conditional operator. It is known as ternary operator because it requires three operands. It requires three operands. That's why it is known as ternary operator. The symbols we are using, question mark and colon. Okay. So here, whatever the operators we have seen up till now, those are binary operators, and the prefix or you can say pre and post increment, this is a unary operator because it is operating on a single operand. Okay, so this is known as unary operator. And other operators which we have seen, like these arithmetic operators, relational operators, or these are binary operators because it requires two operands. And the conditional operator is known as ternary operator because it requires three operands. Okay, so how we can use this ternary operator or conditional operator for simple condition checking? So we have seen that we are using if condition. If I want to check whether the number is even or odd. Okay, so if we are using if condition, so here in if condition, what we will write, suppose there is a number, the num variable I am using, or the y variable which is above we have used, mod 2 equal to 0. We are going to check. If it is 0, then this number will be, we can say that this number is even, right? So we are using if condition. In the if condition, we have to give the condition and then the brackets, and then the if condition will be gets executed, right? So this, in short, for the same purpose, you can use conditional operator for the in a short form. Okay, so if we are removing this if, we will save this value in one variable, that will be Boolean variable, or any variable which you require. You can use any type of variable here. Okay, I'm using Boolean variable. Even odd is the name of the variable I'm using. After this condition, you have to give the question mark so that it will check whether this value is, this condition returns true or false. So after the question mark, when the value gets, if this condition is satisfies, that means when this condition satisfies, it returns true. Okay, so here, whatever the value you want to return when it is true, you can write it here, true. After colon, if that condition fails, then it should return false. Okay, you can use any other variable also. Accordingly, you can change the values here. So I will show you that. So here we can simply say that if it is even or, then we can simple way you can say that it is even number, and if it is returning false, it will be odd number. Okay, so here I will show you the use of this conditional operator one more time using this even or variable. So we will use string variable here. String s is equals to. Now I directly want to check whether this even odd variable is returning true or false. Okay, so we don't use equal to true. अगर equal to true हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. जब भी आप कंडीशन में ऐसे देते हो, दैट मीन्स इट इज चेकिंग फॉर द ट्रू वैल्यू. सो अगर ये इवन ऑड की वैल्यू ट्रू आ रही है, तो हमें एक स्ट्रिंग मैसेज दिखाना है, दैट इज द वेरिएबल y. मुझे यहाँ पे अपेंड करना है y इज even.
आफ्टर कोलन अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है तो फॉल्स आने के बाद मुझे यहाँ पे फॉल्स रिलेटेड वैल्यू दिखानी है जो भी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग ली है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इट इज ऑड। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ले सकते हो। नो इशू, मुझे अलग अलग तरीके से दिखाना था यहाँ पे, इसकी वजह से मैंने दो अलग अलग तरीके से आपको कंडीशनल ऑपरेटर दिखाया है। सो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी वैल्यू आती है वो आप वैल्यू दे सकते हो फॉर ट्रू वैल्यू। दैट मीन्स अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको जो भी ट्रू होने के बाद परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉल्स होने के बाद जो भी परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे डबल कोट्स में, सॉरी, यहाँ पे कोलन के बाद दे सकते हो। कुछ भी हो सकता है, बुलियन वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, जो भी आपको चाहिए वो आप दे सकते हो। बट द वन थिंग इज हियर, ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं इफ के लिए, जब आपको एक सिंगल स्टेटमेंट आपको देना है या सिंगल कुछ परफॉर्म करना है तो ही। अगर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है तो ये रिकमेंडेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कंडीशन चेकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अभी एस वेरिएबल में अगर इवन ऑड की वैल्यू ट्रू है तो एस वेरिएबल में स्टोर होगा ये स्टेटमेंट, दैट इज y इज इवन, y की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी। एंड अगर फॉल्स है तो y की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी। एंड इज ऑड इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो हमें वो स्ट्रिंग वेरिएबल सिर्फ डिस्प्ले करके दिखाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस। जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देगी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 इज ऑड। ठीक है, वैल्यू y की 11 आ रही है, रिमाइंडर हमने यहाँ पे किया है, बहुत सारी चीजें की है, दैट्स वाई y की वैल्यू 11 आ रही है। तो 11 के हिसाब से हमें ऑड कंडीशनल ऑपरेटर से ये मिल रहा है। तो आप कंडीशनल ऑपरेटर किसी भी तरीके से शॉर्ट कंडीशन चेकिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स है आपके पास एंड, सिंगल एंड, और नॉट, देन लेफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स है जो बिट्स के ऊपर काम करते हैं। नॉर्मल रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा कि जहां पे हम डबल एंड यूज करते हैं, बट अगर सिंगल एंड यूज किया तो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इन सब के लिए एक ट्रुथ टेबल होता है। एंड के लिए ट्रुथ टेबल होता है, और के लिए ट्रुथ टेबल होता है। वो ट्रुथ टेबल है क्या? सपोज देर आर टू वैल्यूज, ठीक है, ए है एंड बी है। अगर मैं ए एंड बी कैलकुलेट करती हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? तो हमें पता है कि वहां पे सिर्फ 0 एंड 1 ही रहते हैं, राइट? बिट्स में सिर्फ 0 एंड 1 ही रहेगा। तो अगर मैंने ए की वैल्यू 0 ली है, बी की वैल्यू अगर 0 है, तो ए एंड बी की वैल्यू आपको 1 आएगी, क्योंकि दोनों बिट्स सेम है। ठीक है, दोनों बिट्स सेम है, इसकी वजह से आपको 1 आएगा। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू मैंने 1 दी है, ए की वैल्यू 0 ही है, बी की वैल्यू 1 की है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि दोनों फेल होते हैं। दोनों में से एक ही आपको, सॉरी, ए एंड बी में यहाँ पे भी 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों अगर कंडीशन सेम है तो ही आपकी एग्जीक्यूशन होता है। ये हमने इफ कंडीशन में देखा था। हाँ पूछो पीयूष। मैम, यहाँ पे 1 आएगा क्या सेकंड वाले में? नहीं, एंड ट्रूथ टेबल में? ऐड कर रहे हैं हम तो जी। 1 यहाँ पे नहीं आएगा, और के ट्रुथ टेबल में 1 आता है, क्योंकि आइदर और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो 1 देता है, बट एंड में आपको 0 ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 की है एंड बी की वैल्यू अगर 0 है तो भी आपको 0 ही आएगा। एंड लास्ट में दोनों अगर 1 है, दैट मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू है, दोनों ऑपरेंड्स के वैल्यू है हमारे पास 1 बिट्स के लिए, तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो ए एंड बी का ट्रुथ टेबल इस तरीके से होगा। एंड का ट्रुथ टेबल बिटवाइज एंड के लिए इस तरीके से होता है, जहां पे दोनों बिट्स अगर 1 है
तो आपको 1 आएगा, ठीक है। बाकी सब जगह पे 0 ही आता है। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो हम चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आपको समझ में तो आया, आपको क्यों लगा कि वहां पे 1 आना चाहिए, आप बता सकते हो। हाँ ना मैम, मैं बस कंफ्यूज हो गया था, मैंने पहले पढ़ा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जब एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो एंड ऑपरेटर में आपका सिर्फ जहां पे दो 1 बिट्स आते हैं वहां पे 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर और का करेंगे तो और का आइदर और होता है, राइट। सो इसकी वजह से और के लिए मैंने यहाँ पे लिया और साइन। तब यहाँ पे 0 0 के लिए 0 आएगा, 0 1 के लिए 1 आएगा, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों में से एक भी ऑपरेंड का वैल्यू बिट 1 है तो आपको 1 आता है। यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है। एंड जो लास्ट है वहां पे भी आपको 1 ही आता है, क्योंकि दोनों कंडीशन के लिए भी वो इक्वली एग्जीक्यूट होगा, दोनों बिट्स के लिए भी इक्वली एग्जीक्यूट होगा, दैट्स वाई यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर 0 बिट्स है तो आपको 0 आता है, बाकी सब जगह पे 1 बिट्स आते हैं। यहाँ पे सब जगह पे 0 बिट्स आते हैं, सिर्फ 1 बिट्स है दोनों ऑपरेंड में तो ही 1 बिट्स आते हैं। तो इसका एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है? सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 1010 एंड इसको मैंने लिया है एंड करके 1010 के साथ ही, या फिर मैं दूसरी वैल्यू लेती हूँ, 0101 है एंड किया है मैंने 0111 के साथ, ठीक है। तो अगर मैंने ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0 0 बिट्स के लिए पहले क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 1 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 के लिए क्या आएगा, फिर से 0 आएगा। एंड 1 1 के लिए क्या आएगा, फिर से 1 आएगा। दैट मीन्स द फर्स्ट ऑपरेंड की जो वैल्यू है वही हमें एंड करने के बाद मिल रही है। इसको हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। प्रोग्रामेटिकली देखने के लिए मैंने ये दो वैल्यूज जो है, ये 5 के लिए है, ठीक है। ये 5 का बिट रिप्रेजेंटेशन है और ये 7 का बिट रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट करती हूँ, इंट n1 5 है एंड इंट n2 जो 7 है, ठीक है। सो इसको पहले बिट्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे देखना है वो हमने देखा था, वही हम यूज करेंगे। बिट्स ऑफ n1 और डायरेक्टली n1 की वैल्यू में यहाँ पे डालती हूँ। बिट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हमें चेक करने के लिए, इंटीजर क्लास है, राइट। इंटीजर क्लास में 2 बाइनरी स्ट्रिंग करके मेथड है, इसमें आप ये वेरिएबल पास कर सकते हो बिट रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए, ठीक है। सिमिलर वे मैं n2 के लिए भी बिट्स रिप्रेजेंटेशन देखती हूँ, ठीक। दोनों का बिट्स रिप्रेजेंटेशन होने के बाद हम इसको अभी एंड परफॉर्म करेंगे। तो वो बिट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ n1 यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। n1 एंड n2 इसको मैंने ऐड किया। अभी इसको मुझे चेक करना है कि बिट्स रिप्रेजेंटेशन n1 एंड n2 का क्या आ रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट में दे सकते हो n1 एंड सिंबल एंड n2, ठीक है। तो इसका जो भी एंड वैल्यू आएगा वो आप बिट रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो, या फिर आप इसको एक वेरिएबल में सेव करो। इंटीजर एंड करके मैंने एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने ये वैल्यू सेव की एंड 2 बाइनरी स्ट्रिंग को एंड वेरिएबल पास किया, ठीक है। दैट मीन्स जो भी एंड वैल्यू आएगी, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सो देखो बिट्स रिप्रेजेंटेशन 101 है एंड 111 है, ठीक है। ये मैंने 0 ऐड किए थे 4 बिट्स के हिसाब से, तो आपको 101 मिल रहा है, दैट मीन्स करेक्ट है। जो 5 के बिट्स रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है तो एंड करने के बाद आपको 5 ही मिल रहा है, करेक्ट। इतना तो समझ में आ गया, क्लियर है एंड का। यस मैम। ओके। तो अभी हम
और करके देखते हैं, ठीक है। और के लिए मैंने क्या बोला कि सेम वैल्यूज अगर है, इसको अगर हमने और किया, यहाँ पे मैंने और वैल्यू दिए, तो 0 0 के लिए 0 आता है, 1 1 के लिए 1 आएगा, 0 1 के लिए 1 आएगा, एंड 1 1 के लिए 1 आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू अगेन आपकी 7 के लिए वैल्यू है, सेम रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको एंड और करने के बाद वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा 7 के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे और वेरिएबल को ऐड करती हूँ, सो आपको समझ में आएगा। और वेरिएबल का सॉरी और का यूज जो आपको बिट्स रिप्रेजेंटेशन में दिखाता है 1 1 1 1 जो है 7 वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंड और हमने किया। उसके बाद है हमारा नॉट। नॉट एक सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं, नॉट जनरली हम नॉट इक्वल टू के लिए वगैरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक है वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको देखना है तो टिल्ड जो साइन है वो हम यूज करते हैं। तो इसका हम देखते हैं। मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर ए एंड बी की वैल्यू बी बी की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे एक ही ऑपरेंड होता है वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिल्ड यूज करेंगे। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में ए की वैल्यू 0 है, सॉरी ए का बिट अगर 0 है तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 हो जाएगा, एंड अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। उतना ही डिफरेंस होता है, 0 हो जाएगा। सो सिर्फ इसको भी हम चेक करेंगे। इंटीजर मैंने लिया वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। इंटीजर वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया, सेम वेरिएबल का n1 का लेती हूँ, ठीक है। अभी n1 के पहले आपको टिल्ड साइन ऐड करना है जो वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर बेसिकली ये करता है, ठीक है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ये साइन हमने यूज किया, ये और था, इसकी जरूरत अभी हमें है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे हैं। एंड जो वेरिएबल हमने दिया है वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं बिट्स रिप्रेजेंटेशन में ऐड करती हूँ। तो जो वैल्यू है n1 में, क्या वैल्यू है हमारी, n1 में ये वैल्यू है, ठीक है। n1 में ये वैल्यू है, अगर इसका मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, इससे पहले ऐड करती हूँ, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो जहां पे 0 है वहां पे 1 आएगा, जहां पे 1 है वहां पे 0 आएगा। तो 1 0 1 0, ठीक है। तो ये 1 हम अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये साइन के लिए यूज होगा। मैंने 4 बिट्स के हिसाब से लिया है तो इसकी वजह से सिर्फ इतना भी आ सकता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 के लिए है, अगर आपको चेक करना है तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को इंटीजर वंस कॉम्प्लीमेंट हम नंबर भी डिस्प्ले करके देख सकते हैं, बाइनरी स्ट्रिंग से पहले या फिर बाद में हम इसको डिस्प्ले करेंगे। डेसिमल वैल्यू इसकी वंस कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल की देखेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। अभी जो आपके नंबर ऑफ बिट्स रहेंगे उसके हिसाब से आएगा आपका सिस्टम के जितने भी 32 बिट्स 64 बिट्स जैसे होगा वो उस तरीके से कैलकुलेट करता है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये लास्ट वाले नंबर्स देखने हैं, ठीक है। तो जो लास्ट वाले नंबर्स है वो -6 के लिए है, क्योंकि ये जो मैंने बोला जो 1 ऐड होता है वो आपके सारे ये 1 बिट्स जो है, ये 1 बिट्स आपके साइन के लिए आते हैं। 1 इज यूज्ड फॉर माइनस साइन, 0 इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव साइन, ठीक है। दैट्स वाई ये माइनस साइन आ रहा है, एंड आगे का नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है -6। तो आपका जो नंबर है 5 उसका वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकल रही है -6। ये हो गया आपके नॉर्मल बिट्स ऑपरेटर्स, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमने ये देखी। अभी जो मेन है वो है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स में क्या होता है, जो भी ये बिट्स है
अभी ये बिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस बिट रिप्रेजेंटेशन को आप बता सकते हो कि मुझे 2 बिट से राइट साइड को शिफ्ट करना है या लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है, कितने बिट से शिफ्टिंग करनी है बिट्स की, तो आपकी ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो आप यहाँ पे बता सकते हो यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड, सबसे पहले, ठीक है, हम लेफ्ट शिफ्ट देखेंगे। मैं अलग एक वेरिएबल लेती हूँ, इसकी वैल्यू है 50, ठीक है। 50 का रिप्रेजेंटेशन हम चेक करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको मैं बिट्स रिप्रेजेंटेशन में ऐड करती हूँ, बिट्स ऑफ नंबर 1, ठीक है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया नंबर 1। तो ये आपको बिट्स रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा 50 का। बिट्स रिप्रेजेंटेशन 50 का दिखाने के बाद इसको मुझे 2 बिट्स से, पहले हम बिट्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या है बिट्स रिप्रेजेंटेशन इसका। तो ये रहा आपका बिट्स रिप्रेजेंटेशन 110010। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। इसको अभी मुझे शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड को, ठीक है, बाय 2 बिट्स, ठीक है। सो क्या होगा, जो ये बिट्स है जहाँ पे लेफ्ट साइड को शिफ्टिंग करना है, मतलब जहाँ पे आपके अभी ये ओरिजिनल है, इसके आगे 2 0 ऐड हो जाएंगे और यहाँ से ये 2 नंबर्स चले जाएंगे, या फिर इसको ऐसे ही रखेंगे बट वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, ठीक है। जितने नंबर ऑफ बिट्स है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा नंबर। तो इस तरीके से लेफ्ट किया है, इसकी वजह से लेफ्ट में आपके नंबर्स ऐड होते हैं, शिफ्टिंग लेफ्ट साइड को हो गई, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर लेफ्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, ठीक है। इसका हम सेम जैसे ये वाला देखा है वैसे ही बिट्स ऑफ, अभी यहाँ पे मैं लेफ्ट वेरिएबल डालती हूँ जो हमें लेफ्ट शिफ्ट की वैल्यू दिखाएगा, एंड इसका सेम लेफ्ट शिफ्ट की आपको बाइनरी स्ट्रिंग दिखाएगा, मतलब बाइनरी नंबर भी दिखाएगा, जो हमने यहाँ पे किया है वही आना चाहिए, ठीक है। सो देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे 0 ऐड हो गए, ये जो बिट्स है वो आपके 200 वैल्यू के लिए है, जो डेसिमल 200 वैल्यू है इसके लिए ये नंबर ऑफ बिट्स है। तो जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो जितने नंबर ऑफ बिट्स देते हो उतने ये यहाँ पे 0 ऐड करते जाता है, ये नंबर्स जो है आपके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। क्लियर। सिमिलर वे आप राइट शिफ्ट ऑपरेशन कर सकते हो, जहां पे सेम नंबर है, इसको मैंने राइट शिफ्ट ऑपरेट किया, मैंने वेरिएबल चेंज किया राइट, सॉरी यहाँ पे है, इसको मैंने राइट शिफ्ट किया 2, 2 से राइट शिफ्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये 0 जो यहाँ पे ऐड हो गए हैं वो आपके ये 2 जो नंबर्स है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, एंड इससे पहले आपके 2 जीरोस ऐड होते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो आपकी राइट साइड को शिफ्ट हो रही है, राइट साइड को शिफ्ट हो रही है मतलब आपके राइट साइड के बिट्स जो है वो डिस्कार्ड होते हैं, ठीक है। एंड उससे पहले जो भी बिट्स है वो आपके एज इट इज रहेंगे। तो देखो आपके ये जो बिट्स है वो डिस्कार्ड हो गए, जो लास्ट वाले 2 बिट्स है, एंड उसके हिसाब से आपके वैल्यू जो है वो आपको दिख रही है, मतलब ये 10 बिट्स निकल गया, आपको ये मिला है 1100 जो है आपके 12 वैल्यू के लिए, ठीक है। ये है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमने एंड देखा और देखा, ओके एक्सऑर में बताती हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट देखा, लेफ्ट शिफ्ट देखा, राइट शिफ्ट देखा, ठीक है। एक्सऑर का बाकी है, वो एक्सऑर का भी मैं बताती हूँ। जैसे और का ट्रुथ टेबल है वैसे ही एक्सऑर का भी ट्रुथ टेबल है। एक्सऑर के लिए हम साइन यूज करते हैं दिस वन, के ये एक्सऑर है,
XOR का ट्रुथ टेबल जो है वो आपका रहेगा जहां पे दोनों बिट्स सेम, दोनों में से एक भी बिट 1 है तो आपको 1 आएगा, ठीक है। एंड जहां पे दोनों बिट सेम है वहां पे आपको 0 आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको XOR किया, सेम वैल्यू का मैंने XOR किया, तो आप देखो यहाँ पे ये 0 0 के लिए 0 आएगा, 1 1 के लिए भी 0 आएगा, 0 1 के लिए 1 आएगा, एंड 1 1 के लिए फिर से 0 आएगा। तो आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे। XOR, इस वेरिएबल को मैं XOR यहाँ पे डालती हूँ, एंड ये हम XOR चेक करते हैं यूजिंग द वैल्यू N1 एंड N2। इसका डेसिमल वैल्यू भी हमें चेक करना है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल इज इक्वल्स टू करके सेम वेरिएबल का वैल्यू ऐड करती हूँ, सो दैट आपको डेसिमल वैल्यू क्या आती है उसकी वो भी दिखाई देगी। ठीक? तो ये आपका XOR है, 5 एंड 7 का XOR है। जो वैल्यू आपको मिली है 1 0, ठीक है। जो डेसिमल वैल्यू 2 के लिए हम यूज करते हैं, द बिट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इज 1 0। ओके, तो इस तरीके से आप ये बिट्स पे डायरेक्टली काम कर सकते हो यूजिंग दिस ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है। So we will start with the next module, that is module 5, array and enumeration। मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल 4 का PDF आपको शेयर कर दिया है, अगर नहीं मिला तो मुझे बताओ, बट अभी तो मैंने शेयर किया है, ठीक है। स्विच केस हमने ऑलरेडी देखा है, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जहां पे मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करने हैं तो आप डिफरेंट केसेस यूज कर सकते हो। केसेस में आप डिफरेंट कंडीशंस दे सकते हो। जब ये स्विच केस में एक्सपेक्टेड कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमेशा इंटीजर, डबल या फ्लोट या फिर कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग फॉर्मेट में होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो भी मैचिंग केस मिलेगी वो सेम केस एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रेक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जस्ट टू ब्रेक दैट स्टेटमेंट। इमीडिएटली जो केस है आपका वो ब्रेक होना चाहिए। अगर आपने ब्रेक नहीं दिया तो जो मैचिंग केस एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट हमने देखा, दो ऑपरेशंस करके देखे थे, एड एंड सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन करके देखा था, ठीक है। एंड डिफॉल्ट में हमने इनकरेक्ट चॉइस दिया था। अगर ये रिपीटेड आपको करना है तो आप इसको डू व्हाइल लूप में भी ऐड कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे हमने कहा कोई भी स्टेटमेंट में हमने यूजर इनपुट नहीं लिया है, ठीक है। तो यूजर इनपुट कैसे लेना है वो मैं इसी क्लास में बताती हूँ, ठीक है। तो यूजर इनपुट अगर आपको लेना है तो जावा प्रोवाइड्स यू वन क्लास, दैट इज अ स्कैनर क्लास, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। द सिंटैक्स इज लाइक स्कैनर क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, जो भी आपको देना है वो ऑब्जेक्ट नेम आप दे सकते हो। न्यू कीवर्ड, अगेन स्कैनर क्लास का नेम देना है, इस ब्रैकेट्स के अंदर आपको देना है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा, स्कैनर इज ऑल्सो प्री डिफाइंड क्लास इन जावा, जो है आपका यूटिल पैकेज में, ठीक है। तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये लाइब्रेरी क्लास है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट ऐड करना होता है। तो जो हमने स्ट्रक्चर देखा था क्लास का, उसमें हमने देखा था पहले हम पैकेज स्टेटमेंट ऐड करते, उसके बाद आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट्स ऐड होंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट का सिंटैक्स है इंपोर्ट, जो भी नेम है आपके पैकेजेस के नेम है एंड क्लास का नेम है। ये डिटेल में पैकेजेस जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि जो भी क्लास आप दूसरे किसी पैकेज से यूज करना चाहते हो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। तो ये मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके थ्रू इस स्कैनर क्लास में कुछ मेथड्स है, जो मेथड्स आप यूज कर सकते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए। मतलब जैसे कि आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो कोई भी ईमेल पे लॉगिन करने के लिए, या फिर कोई भी एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, कुछ नंबर्स डालते हो, वैसे ही आपके एप्लीकेशन में जो आपका यूजर है एप्लीकेशन का, उससे अगर हमें कुछ वैल्यू इनपुट लेनी है, ये तो हार्ड कोडेड वैल्यूज है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं, हम वैल्यूज दे रहे हैं। बट
इसके ऊपर डिपेंडेंट हमें नहीं रहना है। तो जो यूजर से वैल्यू आएगी इनपुट, उसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। ये जो स्कैनर क्लास है, इसको कंपलसरी इस ऑब्जेक्ट का यूज करके एट द एंड ऑफ द मेन मेथड, जो यहाँ पे मेन मेथड क्लोज होती है, वहां पे आपको क्लोज मेथड को कॉल करना है, क्योंकि ये स्ट्रीम्स है, ये स्ट्रीम ओपन करता है इनपुट के लिए। अगर ये आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनपुट लेना चाहते हो तब। ठीक है, तो इस स्कैनर क्लास में कुछ मेथड्स है। अभी हमें इंटीजर इनपुट्स लेने हैं, तो इसको मैं रिप्लेस करती हूँ। ठीक है, सेम वेरिएबल की वैल्यू में रिप्लेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम कैसे इनपुट लेंगे? तो सबसे पहले तो यूजर को समझ में आना चाहिए कि क्या इनपुट देना है। अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं, जैसे कि आपका यूजर नेम पासवर्ड है, अगर यूजर नेम पासवर्ड में आपको बताया नहीं कि कहाँ पे यूजर नेम डालना है, कहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो समझ में नहीं आता है, राइट? वैसे ही यहाँ पे यूजर को समझ में आना चाहिए कि क्या इनपुट एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। एंटर नंबर, ठीक है, नंबर हमें एक्सपेक्टेड है, यूजर को समझ में आना चाहिए। तो ये एंटर नंबर मैंने स्टेटमेंट दिया, सेम स्टेटमेंट में और एक बार दूंगी। ठीक है, तो जो वैल्यू मुझे एक्सपेक्टेड है यूजर से, वो मुझे वेरिएबल ए में सेव करनी है, जो इंटीजर टाइप का है। तो उसको सेव करने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास के जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड है नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट इंट मेथड से आप सारे इंटीजर वैल्यूज ले सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट बाइट है, जहाँ पे आप बाइट वैल्यूज ले सकते हो, शॉर्ट वैल्यूज ले सकते हो, शॉर्ट नेक्स्ट शॉर्ट है, नेक्स्ट बुलियन है, नेक्स्ट बहुत सारे वैल्यूज है, नेक्स्ट बुलियन है। इस नेक्स्ट का हम यूज करते हैं फॉर टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट। बट ये स्ट्रिंग इनपुट कब तक रहेगा? जब आपका स्पेस एनकाउंटर होता है, वहां पे ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरी लाइन रीड करनी है, ठीक है, तो पूरी लाइन रीड करने के लिए नेक्स्ट लाइन मेथड है, जिसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू पूरी लाइन आप रीड कर सकते हो। पूरी लाइन जो स्टेटमेंट है, मतलब जब तक आप एंटर नहीं दबाते आपके कीबोर्ड का, तब तक जो भी स्टेटमेंट रहेगा, जो भी वैल्यूज रहेंगे, वो सब रीड करने के लिए नेक्स्ट लाइन मेथड का हम यूज करते हैं। अभी हमें इंटीजर वैल्यू रीड करनी है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड का यूज कर रही हूँ। बाकी के जो है वो हम बाद में देखेंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम हम करेंगे वैसे वैसे। ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल लिया है बी, जिसको मैंने वैल्यू दी थी लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं ऐड करती हूँ st डॉट नेक्स्ट इंट मेथड। बट यूजर को कैसे समझ में आएगा कि दो नंबर एंटर करने हैं? तो इससे पहले भी मैं एक स्टेटमेंट ऐड करती हूँ, सो दैट यूजर को समझ में आएगा कि मुझे इस नंबर के बाद भी और एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें यूजर को ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है, ये दिखाना है, विच इज अ मेनू आइटम। ठीक है, मेनू क्या है आपका, उसमें से यूजर सिलेक्ट करेगा क्या चॉइस करनी है, मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का ही दिया है, तो यहाँ पे हम लेंगे एंटर चॉइस। चॉइस यूजर से एंटर करके लेंगे, मतलब जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी में से यूजर इनपुट लेगा। अगर यहाँ पे आपने कैरेक्टर्स दिए हैं तो आपको केसेस में भी कैरेक्टर्स देने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है तो केसेस में भी आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा। बट क्यों? क्योंकि यूजर जो दिया है उसी में से सिलेक्ट करता है, वो आपका खुद का दिमाग नहीं लगाता है, राइट? जो उसको दिख रहा है उसी में से सिलेक्ट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो भी आप नंबर दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका इनपुट है वो डेटा टाइप उसके हिसाब से रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे इंटीजर एक्सपेक्टेड है, केसेस में भी मैंने इंटीजर वैल्यूज दिए हैं, तो जो वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पे st डॉट नेक्स्ट इंट से रीड करूंगी। या फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन से कैसे रीड करना है वो मैं बताती हूँ। अगर नेक्स्ट लाइन मेथड हमने यूज किया, नेक्स्ट लाइन मेथड जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, ये जो है वो हमेशा स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। तो आपको इस वैल्यू को कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इस इंटीजर को सॉरी स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन के लिए हम यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड। हमने देखा है ऑलरेडी प्रैपर क्लासेस में। ठीक है, तो इसका यूज करके इसमें ये मेथड कॉल करेंगे, सो दैट जो भी स्ट्रिंग इनपुट आएगा
उसको हमने इंटीजर में पास करके चॉइस वेरिएबल में सेव किया। ये चॉइस वेरिएबल आपका स्विच केस को इनपुट जा रहा है। भी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सो देखो, जब तक आप इनपुट नहीं देते हो तब तक ये आपका यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा एंड आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस सिंबल इज नथिंग बट इट इज सेइंग दैट योर प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। तो जब तक आप नंबर एंटर नहीं करते हो तो ये ऐसे ही रहेगा स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर किया 10। उसके बाद एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टिंग अनदर नंबर फ्रॉम अस एज अ यूजर। तो हमें और एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, अभी ओके नंबर मैंने नेक्स्ट इंट यूज किया एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन यूज किया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन को बाद में यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इंट के बाद अगर हमने नेक्स्ट लाइन यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट लाइन मेथड जो है वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है। इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे हमने ये आपको मेनू दिखाई दिया है ना, एंटर चॉइस के लिए एंटर की दब गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से एंटर की के लिए उसने एक्सेप्शन थ्रो किया। एंटर की इज नथिंग बट अ कैरेक्टर, ठीक है, जो स्ट्रिंग इनपुट है, बट हमें चॉइस वैल्यू जो है वो इंटीजर में लेनी है। तो नेक्स्ट इंट के बाद अगर एंटर की दब रही है आपकी, तो वो उसी को कंसिडर कर लेता है। दैट्स वाई अगर एक तो आप नेक्स्ट इंट यूज कर रहे हो तो सब जगह पे नेक्स्ट इंट यूज करो, या फिर सब जगह पे नेक्स्ट लाइन यूज करो। नेक्स्ट इंट के बाद नेक्स्ट लाइन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें और एक बीच में नेक्स्ट लाइन लेनी पड़ेगी, जस्ट टू इग्नोर दैट एंटर की। फिर से ऐड कर रही हूँ। तो अभी देखो आपका कर्सर जो है वो वेट कर रहा है आपकी चॉइस के लिए। ठीक है, दो नंबर से मैंने 1 दिया है फॉर एडिशन, 2 दिया है फॉर सब्ट्रैक्शन। मुझे एडिशन करनी है तो ये एडिशन हो गया। ठीक है, इसको अगर आपको चलाते रहना है तो आप इस पूरे स्टेटमेंट्स को यहां से यहां तक पूरे स्टेटमेंट्स को डू व्हाइल लूप में ऐड कर सकते हो। डू यहाँ पे व्हाइल लूप ऐड कर सकते हो। व्हाइल में मुझे देना है जो अभी ये इंटीजर चॉइस वेरिएबल जो है वो हमने अंदर डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको जो वेरिएबल है वो इस ब्रैकेट से बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं बाहर डिक्लेयर करती हूँ, टीचर चॉइस। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल नेम में हम सेव करेंगे इनपुट। और एक यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ क्लैश इन थर्ड चॉइस जो है एग्जिट। ठीक है, तो अगर मैंने 3 प्रेस किया तो मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप होना चाहिए। तो उसी के लिए हम यहाँ पे भी चॉइस वेरिएबल पे ही लगाएंगे आपका कंडीशन। इफ चॉइस इज नॉट इक्वल टू 3, जब तक चॉइस 3 नहीं हो जाती, चॉइस वेरिएबल की वैल्यू 3 नहीं हो जाती, तब तक मुझे इसको एग्जीक्यूट करते रहना है। क्योंकि डू व्हाइल लूप में हमें पता है कि आपका एक बार एग्जीक्यूशन कंपलसरी होता है, उसके बाद व्हाइल कंडीशन चेक होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने चेक किया कि जब तक चॉइस की वेरिएबल वैल्यू जो है, चॉइस वेरिएबल की वैल्यू 3 नहीं हो जाती, तब तक ये एग्जीक्यूशन करता ही रहेगा। उसके लिए मैंने केस 3 ऐड की एंड यहाँ पे ब्रेक ऐड किया। तो केस 3 में मुझे एग्जिट करना है, प्रोग्राम को स्टॉप करना है। तो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम क्लास का एग्जिट मेथड, जिसमें हमें स्टेटस देना होता है। आप 0 दो या 1 दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम डॉट एग्जिट अगर हमने दिया तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है। एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, थैंक यू फॉर विजिटिंग। ठीक है, ऐसे कुछ तो मैंने स्टेटमेंट दिया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपको देना है दे सकते हो, नहीं देना है मतलब। ठीक है, तो ये अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो आपका प्रोग्राम जो है, जब तक आप वैल्यू एंटर करते जा रहे हो तब तक वो एग्जीक्यूशन होता जाएगा। ठीक है,
सो एडिशन आपको दिखाई दी, अभी फिर से आपको मेनू दिखाई देगा क्योंकि मैंने मेनू से ही इसको डू वाइल लूप में ऐड किया है। आपको नंबर से लेना है तो वो नंबर्स पे आप अंदर ले सकते हो डू वाइल के अंदर, ठीक है। अभी मैंने फिर से 2 यूज किया तो सब्ट्रैक्शन वही उन्हीं नंबर्स की हो गई। अभी मैं 3 ऐड करती हूँ या फिर मैंने 8 ऐड किया तो इनकरेक्ट चॉइस दिख रहा है, मतलब आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है बट आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ। जब तक आप 3 प्रेस नहीं करते हो तब तक आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। तो जैसे मैंने 3 एग्जिट किया तो आपको थैंक यू फॉर विजिटिंग का मैसेज आया और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। यहाँ पे देखो ये टर्मिनेटेड दिख रहा है, मतलब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। दिस इज द स्विच केस विथ रिपीटिव स्टेटमेंट्स एंड यूजर इनपुट्स, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? नो मैम। द नेक्स्ट इज योर एरे एंड एन्यूमरेशन मॉड्यूल, ठीक है, जहाँ पे हम एरेज पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के एरेज होते हैं, एरेज क्यों यूज करना है वो पढ़ेंगे, एंड एन्यूमरेशन भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो हमने 8 जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो देखे। अभी ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में 2 टाइप्स है, एक तो डिराइव्ड टाइप्स है एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। डिराइव्ड डेटा टाइप में एरेज आते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड क्योंकि हम डिफाइन करते हैं इसकी वजह से यूजर डिफाइंस में इनम्स आते हैं, क्लासेस आते हैं, ठीक है। तो एरेज हम अभी देखेंगे क्या होता है। सपोज कंसिडर करो कि एक मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने हैं, सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने हैं। सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स है, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए मुझे अगर चाहिए अलग अलग वेरिएबल्स सेव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करती हूँ एरे एग्जाम्पल, ठीक है। मेन मेथड भी इंक्लूड करती हूँ। तो मुझे सपोज लेने हैं स्टूडेंट के मार्क्स जो इंटीजर टाइप में है, M1 M2 M3, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में ले रही हूँ, साइंस एंड सपोज कंप्यूटर, ठीक है, या फिर जावा, ये सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट्स को मैंने 5 अलग अलग 5 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए। तो इनमें मुझे डेटा सेव करना है, मेमोरी तो उतनी ही लगेगी, राइट। 5 वेरिएबल्स अगर मैंने इंटीजर टाइप के क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे मेमोरी मुझे जितनी लगने वाली है उतनी ही लगेगी। 5 वेरिएबल्स में मुझे वैल्यू सेव करने हैं बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सेपरेट सेपरेट नेम टू दैट, सेपरेट अलग अलग नेम देने की जगह पे आप इसका एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हो जहां पे हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा सेव कर सकते हैं। एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज आप सेव कर सकते हो, वहां पे आपके कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, कितनी भी वैल्यू आप सेव कर सकते हो। बट कुछ पॉइंट्स है वो हम देखते हैं पहले। जैसे मैंने बोला एरेज इज यूज टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है। इसकी साइज फिक्स्ड होती है, जो साइज आप दोगे एरे के लिए वही साइज उतनी ही वैल्यूज वो स्टोर करता है। तो आप कितनी भी दे सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, बट इट शुड बी फिक्स्ड साइज। जो एरेज में डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस मतलब क्या, कि सपोज ये जो पहला वैल्यू हमने दिया है वो सपोज 3020 मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 3022 पे स्टोर हो रहा है, 24 पे स्टोर हो रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस बोलते हैं। अगर नॉर्मली इंटीजर वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे तो ये कौन से भी मेमोरी एड्रेसेस पे स्टोर हो जाते हैं, राइट। उसको हम एक ही नाम से ये कर सकते, देख सकते, एक ही नाम उसको हम दे सकते, उसमें आप अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हो एंड जो वैल्यूज है वो आपकी अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर ना होते हुए एक ही कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे वो स्टोर होता है। एक इंटीजर वेरिएबल को जितना मेमोरी लगता है उतना तो यहाँ पे भी लगेगा, मतलब मेमोरी के हिसाब से ये 5 वेरिएबल्स एंड एरेज दोनों सेम मेमोरी कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, सेम मेमोरी कंजम्पशन होता है।
तो इसमें वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं? तो दो टाइप्स के एरेज रहेंगे। सिंटैक्स है, दो टाइप्स के एरेज रहते हैं, एक तो वन डायमेंशनल एरे, सेकेंड वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल में हम टू डायमेंशनल एरे देखेंगे, ठीक है। सो सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले तो कौन से डेटा टाइप के वैल्यूज आपको स्टोर करने हैं वो आपको डेटा टाइप देना है। उसके बाद एरे को नेम देना है। उसके बाद आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर ही समझ में आता है कि ये आपको एरे बनाना है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने हैं। उसके बाद न्यू कीवर्ड हमें देना है। जिस डेटा टाइप के वैल्यूज आपको स्टोर करने हैं वो डेटा टाइप आपको देना है। एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको साइज मेंशन करनी है। ये साइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका इतने साइज का मतलब आपको 10 वैल्यूज स्टोर करने हैं तो 10 साइज दो। तो 10 वैल्यूज स्टोर करने के लिए ये मेमोरी एलोकेशन करेगा, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन जो होगा वो 10 वैल्यूज स्टोर करने के लिए ही होगा। 10 से आगे वैल्यूज स्टोर नहीं होते हैं। एरेज में डेटा जब भी स्टोर होता है वो इंडेक्स बेसिस पे होता है। तो इंडेक्सेस हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। तो आपको 10 वैल्यू स्टोर करना है, मतलब आपके 0 to 9 इंडेक्सेस रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होती है। उसी का मेमोरी एड्रेस जो है वो आपके वेरिएबल में स्टोर होता है, क्योंकि ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। इसकी वजह से जितनी साइज है वहां से वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 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 वैल्यू ले सकता है। तो इसकी वजह से सिर्फ जो 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी, उसका एड्रेस स्टोर होगा आपके मार्क्स वेरिएबल में, ठीक है। तो मार्क इज द नेम ऑफ द एरे लिस्ट, ठीक है। ये जो हमने एरे बनाया है इसका नेम हमने मार्क्स दिया है, तो इसको हमें एक्सेस करना है तो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, ऐसे आप इंडेक्सेस देते जाते हो, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस बेस करेंगे आपके नंबर ऑफ वैल्यूज यू आर स्टोरिंग इनटू इट। कितने वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो उससे एक कम, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं। इसको एक्सेस कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो इसी को मैं रीराइट करती हूँ यूजिंग एरे। तो सपोज मैंने इंटीजर टाइप का एरे लिया, मार्क्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए सिंटैक्स के हिसाब से, न्यू इंटीजर, मुझे 5 मार्क्स के लिए स्पेस चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ 5 वैल्यूज स्टोर करने हैं, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया है, साइज दिया है 5। फिर डायरेक्टली हम वैल्यू स्टोर करेंगे अलग अलग इंडेक्स पे। तो जैसे बोला, इंडेक्स 0 पे सबसे पहली वैल्यू मैं स्टोर कर रही हूँ, वैल्यू इज सपोज 65। नेक्स्ट मुझे स्टोर करनी है वैल्यू, अभी मैं एक स्किप करती हूँ, फर्स्ट इंडेक्स मैंने स्किप किया, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करती हूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यूज दी और एक वैल्यू देती हूँ जो मेरा फोर्थ इंडेक्स पे होगा। मैंने और एक इंडेक्स स्किप किया। इस तरीके से आप स्किप कर सकते हो कहाँ तक, जो फोर्थ इंडेक्स आपका लास्ट होगा, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है। तो वैल्यूज इंडेक्सेस क्या रहेंगे आपके? इंडेक्सेस विल बी 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये टोटल 5 वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 पे वैल्यू दिया है, 1 को स्किप किया, 2 को वैल्यू दिया है, 3 को स्किप किया, 4 को वैल्यू दिया है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट है। तो ये मैंने 3 वैल्यूज दिए हैं, ऐसे आप दे सकते हो। इस तरीके से आप वैल्यूज डायरेक्टली इंडेक्सेस पे स्टोर कर सकते हो। अभी इसको मुझे देखना है कि वैल्यूज क्या स्टोर हुए हैं, तो आप नॉर्मली system.out.println में अगर मार्क्स एरे डिस्प्ले करती हूँ, एरे इज इक्वल्स टू, मैंने एरे का नेम दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया तो आपको सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। ये एलिमेंट्स जो है ये आपका आईडी दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट का आईडी है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आपको देखने के लिए, एज वी आर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू इट, ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यूज है, इसकी वजह से इस तरीके से आपको डायरेक्टली वैल्यूज नहीं मिलेंगे। जैसे अभी तक हमें डायरेक्टली वेरिएबल का नाम देके वैल्यूज मिलते थे, वैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे लूप यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर लूप मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इंटीजर आई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया,
जो जीरो के इनिशियलाइज किया क्योंकि वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी इसको मुझे लूप करना है, कहाँ तक करना है, जितनी इस एरे की साइज है वहां तक करना है। तो आई लेस देन, मैंने दिया एरेज में लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जो आपका साइज जितना है वो लेगा, ठीक है। अगर लेंथ को यूज नहीं करना है तो आप मैन्युअली ये साइज जो है वो भी एंटर कर सकते हो, जितने बार आपको, जितने वैल्यूज आपको रीड करने हैं उसके लिए। तो ये मैं यहाँ पे अभी इंडेक्स बेसिस के ऊपर हम वैल्यूज को रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी आई वेरिएबल की वैल्यू है उसको मैं कंसिडर करती हूँ कि वो मेरा इंडेक्स है, वो मेरा इंडेक्स है। तो वो इंडेक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया, मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। मतलब जो आई की वैल्यू है जीरो, वो पहले आएगी। मार्क्स ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू स्टोर हो गई है वो मुझे देखना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए भी हमें ये ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं, जो इंडेक्स है। एंड एज वी आर यूजिंग लुप, आप यहाँ पे डायरेक्टली लुप वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो। तो ये आपको पूरे एलिमेंट्स जो है वो दिखाएगा। जिस वेरिएबल के लिए, जिस इंडेक्सेस के लिए हमने वैल्यू नहीं स्टोर की है, उसके लिए जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप वो सेट हो जाएगी। तो जैसे मैंने बोला 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सेस आपके आएंगे वन डायमेंशनल एरे में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है पीयूष? नो मैम। ओ, ठीक है। तो इसको हम और एक तरीके से कर सकते हैं। इसको मैंने, ये जो है ये हमने डिक्लेयर किया है एरे को, एंड उसके बाद हमने वैल्यूज को असाइन किया है, ठीक है। सो ये है असाइनिंग वैल्यूज। इसको हम और एक तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर। तो इसको सपोज मैं दूसरे के से टाइप का लेती हूँ, स्ट्रिंग टाइप का लेती हूँ, और एक अलग टाइप से हम कर सकते हैं। आप डेटा टाइप के यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स दे सकते हो रादर देन गिविंग द वेरिएबल नेम। तो मैंने यहाँ पे सपोज नेम्स का एक एरे बनाया है इक्वल टू करके। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज दे रही हूँ, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन एट द सेम स्टेप, ठीक है। तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड वगैरह साइज देने की जरूरत नहीं है, जितने वैल्यूज आप इसके अंदर दोगे उतने वैल्यूज, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज है उतने साइज का एरे ये क्रिएट करता है। सपोज मैंने यहाँ पे नेम दिए हैं कुछ, ठीक है। तो मैंने तीन वैल्यूज दिए हैं। तो ये जो एरे क्रिएट हो रहा है इसको हमने वैल्यूज एट द सेम टाइम दिए हैं, तो इसको डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इसको भी आप इंडेक्स बेसिस के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर मुझे एक्सेस करना है वैल्यू नेम एट जीरो इंडेक्स, अगर मुझे एक्सेस करना है तो आप सिंगल वैल्यू इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो दो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। आपको सारे चाहिए, अभी यहाँ पे हमने साइज दी नहीं है, ठीक है। तो जितने वैल्यूज है उतनी साइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्रिएट। तो जैसे इसको आप लेंथ को रिप्लेस कर सकते हो साइज के हिसाब से, बट इस केस में आपको कंपलसरी लेंथ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकोगे? क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसकी एग्जैक्ट साइज क्या है। ओके, सो आप यहाँ पे फॉर लूप में डायरेक्टली नेम्स डॉट लेंथ ही यूज कर सकते हो, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको भी मैं इसी तरीके से डिस्प्ले करती हूँ सो दैट को समझ में आएगा। सिर्फ मैं नेम एरे लेती हूँ, ith इंडेक्स एंड नेम्स ऑफ आई। तो मल्टीपल वैल्यूज आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। So name at zeroth index is this, and we have iterated over all the elements of array names, ठीक है। तो जितने वैल्यूज है आपकी, इसको साइज देखनी है, लेंथ देखनी है, तो आप डायरेक्टली लेंथ भी चेक कर सकते हो यूजिंग द स्टेटमेंट
this length of array। अगर मुझे चेक करना है तो आप डायरेक्टली नेम्स डॉट लेंथ डिस्प्ले कर सकते हो, ये इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न देता है। ओके, जो आपकी एरे की लेंथ है। ओके, सो लेंथ ऑफ एरे इज 3, दैट्स वाई आपके पास 0, 1 एंड 2 करके इंडेक्सेस है। क्लियर? ये आपका वन डायमेंशनल एरे हमने देखा। इसको यूजर इनपुट्स कैसे लेने हैं वो भी देखेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में हम मल्टी डायमेंशनल एरे में 2 डायमेंशनल एरे देखेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। ठीक, थैंक यू पीयूष। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में एरे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थैंक यू, यू मे बी। ओके मैम।